Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is binomial expansion. The binomial probability function is equal to p of x, which is equal to ncx p raised to power x q raised to power n minus x, and x having the values 0, 1, 2 up to so on n, where P and Q are the probability of success and probability of Q is the probability of failure. Consider the following expansions: x plus y having power 0 is equal to 1. As we know that any value having power 0 is equal to 1. The next expansion is x plus y raised to power 1, which is equal to x plus y, and it is also equal to 1c0 x raised to power 1 y raised to power 0 plus 1c1 x raised to power 0 y raised to power 1, where 1c0 and 1c1 are the combinations. The next expansion is x plus y whole raised to power 2, which is equal to x square plus 2xy plus y square, which is the whole square of x plus y, and it is also equal to 2c0 x raised to power 0 y raised to x raised to power 2 y raised to power 0 plus 2c1 x raised to power 1 and y raised to power 1 plus 2c2 x raised to power 0 y raised to power 2. And the next expansion is x plus y whole cube. It is equal to x cube plus 3x square y plus 3x y square plus y cube, and it is equal to 3c0 x cube y raised to power 0 plus 3c1 x square y raised to power 1 plus 3c2 x raised to power 1 y square plus 3c3 x raised to power 0 and y cube. In general, it can be shown that x plus y raised to power n, uh, it is equal to nc0 x raised to power n y raised to power 0 plus nc1 x raised to power n minus 1 y raised to power 1 plus nc2 x raised to power n minus 2 y square plus nc3 x raised to power n minus 3 y raised to power 3 plus so on plus ncr x raised to power n minus r y raised to power r plus so on plus ncn x raised to power 0 y raised to power n. It is equal to x raised to power n plus nc1 x raised to power n minus 1 y plus nc2 x raised to power n minus 2 y square plus so on plus ncr x raised to power n minus r y raised to power r plus so on plus y raised to power n. Here the first term is x raised to power n. In first term nc0 we know it is equal to 1, and in the last term ncn is also equal to 1. In the first term y raised to power 0 is equal to 1, and in the last term x raised to power 0 is also equal to 1. So we having the first term x raised to power n and the last term is y raised to power n. यहाँ पे n हमारे पास था x प्लस वाई रेस टू पावर n, n टर्म्स थी इन जनरल। तो क्योंकि x हमारे पास 0 से लेकर n तक होता है, तो हम वैल्यूज लेंगे 0 से लेकर n तक। हम इसको कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे? 0 से लेकर n तक एक्सपेंड करेंगे। These types of expansions are called binomial expansions, and the coefficients nc0, nc1 up to so on ncr up to so on ncn are called the binomial coefficients. These coefficients in x plus y raised to power 0 is 1, and in x plus y raised to power 1 are 1, 1.
These coefficients can be written in the following table known as Pascal's triangle. The numerical coefficients in the binomial expansion can be found in Pascal's triangle. Number 1, the first row n is equal to 0, a plus b raised to power 0. In Pascal triangle, it has only one coefficient and it is nc0. The second row n is equal to 1, a plus b whole raised to power n, and it has two coefficients 1, 1, and these are equal to 1c0 and 1c1. In third row, n is equal to 2, a plus b whole raised to power 2. It has the coefficients 1, 2, 1, and these are 2c0, 2c1, and 2c2. In fourth row, n is equal to 3, a plus b whole raised to power 3, and these have the coefficients 1, 3, 3, 1, and these are 3c0, 3c1, 3c2, 3c3. In fifth row, n is equal to 4, a plus b whole raised to power 4, and it has the coefficient 1, 4, 6, 4, 1, and these are 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, and 4c4. In sixth row, n is equal to 5, a plus b whole raised to power 5 has coefficients 1, 5, 10, 10, 5, and 1, and these are 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c1. Instead of AB, we also use XY, and X instead of XY we use AB, and also QP is also used here. इसमें हमने देखा बच्चों कि देखें फर्स्ट जो पास्कल ट्रायंगल में आपने देखा कि पावर अगर 0 है तो उसमें कोफिशिएंट 1 है क्योंकि nc0 आपने लिया और आपको पता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ nc0 इट इज इक्वल टू 1. ठीक है. नेक्स्ट में देखें जब n हमने लिया 1 के इक्वल तो हमारे पास जो है a प्लस बी रेज टू पावर 1 है वो हमारे पास किसके इक्वल आया. वो एक्सपेंशन हमने जब उसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास उसमें दो कोएफिशिएंट आए विच आर इक्वल टू 1, 1 एंड 1. ठीक है. अब आप देखें वो क्या है 1c0 एंड 1c1. 1c0 का कॉम्बिनेशन जब आप खोलते हैं तो वो भी आपके पास 1 के इक्वल आता है और 1c1 का कॉम्बिनेशन जब आप ओपन करते हैं तो वो भी आपके पास 1 के इक्वल ही आता है. ठीक है. अब इसमें आप देखें कि 1 प्लस 1 करें तो दरमियान में वो क्या है 2 आ रहा है. 1 प्लस 1 ऊपर वाले दो को अगर प्लस करें तो दरमियान में देखें नीचे वाली रो में 2 आ रहा है. इसी तरह से 2 प्लस 1 आप करेंगे तो नीचे की रो में देखें 3 आ रहा है. तो ये इसी तरह से ये आपके पास कोफिशिएंट जो हैं ये इस ट्रायंगल में आते जाएंगे. अब नेक्स्ट थर्ड रो में आप देखें व्हेन n इज इक्वल टू 2 a प्लस b होल रेज टू पावर 2 तो उसमें तीन कोफिशिएंट्स आपके पास हैं. फर्स्ट 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है. जैसे 2c0, 2c1, 2c2. आपको पता है कि जब 2c0 का कॉम्बिनेशन आप खोलेंगे तो ये इक्वल टू 1 आएगा और 2c2 का कॉम्बिनेशन जब आप ओपन करते हैं तो वो आपके पास 2 के इक्वल होता है और 2c2 जब आप ओपन करते हैं तो वो आपके पास इक्वल टू 1 आता है. इसी तरह से फोर्थ में आप देखेंगे कि व्हेन we put n is equal to 3, a plus b whole raised to power 3, तो हमारे पास कोफिशिएंट्स आते हैं 1, 3, 3, 1. कैसे आते हैं ये कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आप देखें 3c0, 3c1, 3c2, 3c3. क्योंकि हम x को एक्सपेंड कर रहे हैं. x हमारे पास क्या है बाइनोमियल में 0 से लेकर n तक वैल्यूज हैं. जब हमने n यहाँ पे 3 लिया तो हम उसको 0 से लेकर 3 तक एक्सपेंड करेंगे. ठीक है. तो ये हमारे पास आ गए 3c0 आपको पता है इक्वल टू क्या होगा 1 होगा. जब इसको हम कॉम्बिनेशन को खोलेंगे 3c1 हमारे पास किसके इक्वल आएगा 3 के इक्वल आएगा.
इसी तरह से 3C2 किसके इक्वल आएगा, वो भी कॉम्बिनेशन जब हम खोलते हैं तो हमारे पास 3 के इक्वल आता है। इसी तरह से 3C3 जो है वो किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट रो में आप देखें, जब हम n जो है वो इक्वल टू 4 लेते हैं, a प्लस बी होल रेज टू पावर 4, तो हमारे पास जो कोफिशिएंट्स आते हैं वो हैं 1, 4, 6, 4, 1। अब इसमें देखें, ऊपर वाले 1 प्लस 3 करें तो नीचे आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसी तरह से ऊपर आप देखें 3 प्लस 3 करें तो उसके नीचे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और 3 प्लस 1 करें तो नीचे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें आपके पास ये ट्रायंगल है और इसकी कोरेस्पॉन्डिंग आप देखें कोएफिशिएंट्स को, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4। अब 4C0 आपको पता है, उसको कब जब आप खोलेंगे तो आपके पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। 4C1 इट इज इक्वल टू 4 एंड 4C2 इट इज इक्वल टू 6 एंड 4C3 इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। इस तरह से 4C4 ये आपके पास इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट रो में आप देखें, रो जो 6 है उसमें n इज इक्वल टू 5 जब हम लेते हैं तो a प्लस बी होल रेज टू पावर 5, तो उसमें हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स आते हैं वो क्या है, 1 है, 5, 10, 10, 5, 1। और किस तरह से आते हैं, कॉम्बिनेशन की फॉर्म में देखें, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। क्योंकि n हमारे पास 5 है, हम 0 से लेकर उसको 5 तक लेंगे। ठीक है, 5 तक एक्सपेंड करेंगे। अब आप देखिए 5C0 आपके पास किसके इक्वल है, आता है जब आप कॉम्बिनेशन खोलते हैं इक्वल टू 1 आता है। इस तरह से 5C1 आपके पास किसके इक्वल आता है, 5 के इक्वल। 5C2 आपके पास किसके इक्वल आता है, 10 के इक्वल। 5C3 किसके इक्वल आता है, 10 के इक्वल। 5C4 आपके पास किसके इक्वल आता है, 5 के इक्वल। और 5C5 आपके पास 1 के इक्वल आ जाता है। इसी तरह बच्चे हम n इज इक्वल टू 5, इस तरह n इज इक्वल टू 6, 7, 8 जितना भी आगे एक्सपेंड कर सकते हैं हम इसको इसी तरह से एक्सपेंड करते जाएंगे। अब यहाँ पे हमने सिंबल्स जो हैं x और y भी पीछे यूज किया है और यहाँ पे a और b भी यूज किया है। आगे हम q और p जो है वो भी यूज करेंगे। तो इसमें आप एक्स वाई भी यूज कर सकते हैं, सिंबल्स ए बी भी यूज कर सकते हैं और क्यू पी भी यूज कर सकते हैं। क्यू और पी वैसे ज्यादातर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम यूज करते हैं, क्योंकि क्यू को हम लेते हैं नंबर ऑफ फेलियर्स और पी जो है दीज आर द नंबर ऑफ सक्सेस इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। Expand the following expression. Now the question is q plus p whole raised to power 4. अब n हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 के इक्वल है और x हम कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, x 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि बाइनोमियल probability function it is equal to p of x is equal to ncx p raised to power x q raised to power n minus x. According to this it is equal to 4C0 q raised to power 4 p raised to power 0 plus 4C1 q raised to power 3 p raised to power 1 plus 4C2 q raised to power 2 p raised to power 2 plus 4C3 q raised to power 1 p raised to power 3 plus 4C4 q raised to power 0 p raised to power 4, and it is further equal to q raised to power 4 plus 4 q raised to power 3 p raised to power 1 plus 6 q square p square plus 4 q p raised to power 3 plus p raised to power 4. इसमें देखें q raised to power 4 हमारे पास कैसे आया बेटे, 4C0 एज वी नो, मैंने साइड पे आपको बताया भी है कि किसके इक्वल होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 0 फैक्टोरियल। 4 माइनस 0 फैक्टोरियल आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और 0 फैक्टोरियल इज आल्सो इक्वल टू 1, तो आपके पास ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल। और q रेस्ट पावर 4 है और p रेस्ट पावर 0 जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो आपके पास टर्म कौन सी रह जाएगी, q रेस्ट पावर 4। नेक्स्ट वन में देखें 4C1
4C1 का कॉम्बिनेशन भी मैंने आपको साइड पे बताया है कि किस तरह से ओपन करेंगे, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को आप 3 फैक्टोरियल तक खोलें, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास 4 बच जाएगा। 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा। q रेस्ट टू पावर 3 और p रेस्ट टू पावर 1 है आपके पास। प्लस 4c2 को जब आप ओपन करते हैं तो इसका आंसर 6 आता है, और q स्क्वायर है आपके पास और p स्क्वायर है। प्लस 4c3 जब आप ओपन करते हैं तो आपके पास ये 4 के इक्वल आता है इसका आंसर। 4 और आगे क्या है, q रेस्ट टू पावर 1 एंड p रेस्ट टू पावर 3। प्लस 4c4 इज आल्सो इक्वल टू 1 एंड q रेस्ट टू पावर 0। आपके पास टर्म कौन सी रह जाती है पीछे, p रेस्ट टू पावर 4। अब इसमें बेटा एक चीज आपने नोटिस की होगी कि आपके पास एक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू बढ़ रही है और एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो कम हो रही है इसमें एक्सपेंशन में। ठीक है, इस चीज को आपने देखना है। जैसे आप q की वैल्यू को देखें 4, 3, 2, 1 एंड 0। इसी तरह p की वैल्यू को देखें 0, 1, 2, 3 एंड 4। एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ेगी, एक की वैल्यू कम होगी। तो ये है एक्सपेंशन q प्लस p रेज टू पावर 4।